Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Yusuf, your English teacher. Students, I bring a new video for you people. In this video, we will study about the topic an encounter of a special kind. It is written by Tapan Mukherjee. Students, we are going to understand three passages of this topic. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The offices of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. तो स्टूडेंट्स, अब हम इस पैसेज को लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करेंगे. चलिए इस फर्स्ट पैसेज को लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The offices of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइन में राइटर क्या कह रहा है. राइटर कहता है कि मेरे वालिद, जो यानी कि राइटर के वालिद रानीगंज वेस्ट बंगाल के एक प्राइवेट मेडिकल कंपनी में काम किया करते थे. उसी कंपनी के अफसरान के जो बंगले एक बड़े से कैंपस में तामीर शुदा थे. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइंस में राइटर क्या कह रहा है. राइटर कहता है कि हमारा मकान उसी कैंपस के कॉर्नर पर मौजूद था. ऑफिसर क्लब यानी ऑफिसर्स के सोसाइटी के बिल्कुल करीब में जो दीवार थी, उसी दीवार के करीब में राइटर का एक गार्डन था और उसी गार्डन के इहाते में बड़ा ही शानदार सब्ज़ाज़ार था, यानी हरियाली थी. रंग बिरंगे फूल से महकता वो गार्डन था और उसी गार्डन में यानी उसी इहाते में बड़े बड़े दरख्तों के हुजूम थे, यानी बहुत सारे दरख्त वहाँ पर मौजूद थे. यानी वो गार्डन फूलों के साथ साथ सब्ज़ाज़ार होने के साथ साथ दरख्तों से भी घेरा हुआ था. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly
attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइंस में राइटर क्या कह रहा है? राइटर कहता है हमारे किचन गार्डन में हमारी फैमिली के लिए जो सीजनल वेजिटेबल्स की काश्त की जाती थी। किचन गार्डन यानी एक छोटा सा बगीचा होता है जिसमें हम अपने लिए बागबानी करते हैं, और सीजनल वेजिटेबल यानी मौसमी सब्ज़ी तरकारियाँ। तो इसी किचन गार्डन में राइटर की फैमिली उनके लिए सीजनल वेजिटेबल्स उगाया करती थी। और आगे राइटर कहता है जो आलीशान दरख्त उस कैंपस के इहाते में मौजूद थे, उसी पर हमेशा गिलहरियों का और साथ ही साथ कई अक़साम के परिंदों का गुरविदा होना और बंदरों के एक ग्रोह ने इसी दरख्तों से करीब एक अस्वथा नामी दरख्त यानी पीपल के दरख्त को अस्वथा दरख्त कहते हैं। इसी पीपल के दरख्त पर बंदरों ने अपना डेन यानी बसेरा बनाया था। They had all become a part and parcel of our existence and daily life. राइटर कहते हैं कि ये सारी चीज़ें यानी कि दरख्तों के ऊपर आने जाने वाली चिड़ियाँ, गिलहरियाँ और लंगूर, ये सारे जो है तो हमारे ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुके थे। Next passage of the topic. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. चलिए स्टूडेंट्स, इस पैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइंस में राइटर क्या बता रहे हैं? राइटर कहते हैं कि सैटरडे आफ्टरनून में एक छोटा सा इंसिडेंट, एक वाक़या रोनुमा हुआ, पेश आया। प्रोफाउंड के माने होते हैं गहरे के। वो जो वाक़या राइटर के ज़िंदगी में पेश आया, वो वाक़ये ने राइटर के ज़िंदगी पर एक गहरी छाप छोड़ डाली। उस वाक़ये का राइटर पे बहुत गहरा असर हुआ। राइटर कहता है कि अनफोल्डेड बिफोर माई आइज़, यानी कि वो वाक़या राइटर के सामने जो रोनुमा हुआ, पेश आया। अनफोल्डेड के मायने होते हैं सामने आया,
इससे पहले राइटर की आंखों के सामने कभी ऐसा इंसिडेंट देखने का मौका राइटर को नहीं हुआ था। राइटर आगे कहता है, अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि अल्लाह ताला की मखलूक की तरफ से एक ऐसा वाक़या जो मुझे एक मखसूस सिमत की तरफ खींच डाला उसने, यानी राइटर को एक ऐसी जो है तो सोच में डाल दिया कि राइटर इस सोच में पड़ गया कि ऐसा भी वाक़या हो सकता था जो राइटर ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इट वॉज अ फ्यू डेज इनटू द पूजा वेकेशन। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मेरी जो पूजा की तातील लगी थी, यानी कि राइटर को जो छुट्टियां मिली थी, ख़ास करके उनके जो मजहबी त्यौहार की छुट्टियां थी, पूजा के दिन थे वो, तो उसी जो है तो दिनों की ये बात है, कुछ दिन पहले की, कि राइटर के सामने एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइंस में राइटर क्या कहते हैं। राइटर कह रहे हैं कि जिस तरह दूसरे बच्चों को छुट्टियों में जो मौके फराम होते हैं, तो उन्हीं बच्चों में मैं भी एक था जिसे छुट्टियों के अंदर रीडिंग का मौका फराम हुआ। वो कहते हैं कि जब मुझे रीडिंग का मौका फराम हुआ तो मैं किताबों में यानी मैगज़ीन्स और स्टोरी बुक्स में पूरी तरह से इनग्रूस्ड हो गया। इनग्रूस्ड के माने होते हैं बहुत ज़्यादा गर्क हो जाना, यानी कि गहरा मुताला करना, दिलजोई के साथ पढ़ना, पढ़ते वक्त किसी तरफ भी ध्यान नहीं जाना। यहाँ पे हम ये मायने ले सकते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली छुट्टियों में, तो बहुत यानी कि मुझे मैगज़ीन्स पढ़ने का मौका मिला, स्टोरी बुक्स पढ़ने का मौका मिला। वो कहते हैं कि फेस्टिव सीज़न में ऐसा होता था कि बहुत सारे मैगज़ीन्स और स्टोरी बुक्स स्पेशली इस सीज़न में बच्चों के लिए जो है तो शाये होते थे, पब्लिश्ड होते थे। थर्ड पैसेज of the topic. After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in the book. Third passage of the topic. After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइंस में राइटर क्या कहते हैं। राइटर कहते हैं कि दोपहर के खाने के बाद यहाँ पर जो हार्टी लंच आया है, तो यहाँ मुराद है कि
बहुत सहर होकर खाया हुआ खाना, यानी कि पेट भर कर जो खाना हम खाते हैं भूख लगने के बाद, तो दोपहर के खाने के बाद राइटर के पेरेंट्स और उसकी यंगर सिस्टर्स ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप, यानी कि दोपहर की नींद ले रहे थे वो लंच के बाद। और राइटर कहते हैं कि आई सेटल डाउन विद ए स्टोरी बुक, और मैंने अपनी स्टोरी बुक लेकर उसे रीड करने के लिए बैठ गया। दोपहर बहुत ही खामोश थी, यानी द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग, यानी कि दोपहर में घर के तमाम लोग सोए हुए थे, इसलिए खामोशी बहुत थी। और राइटर कहते हैं कि यह खामोशी की वजह से वो एडवेंचर स्टोरी की तरफ मुतवज्जा है। The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring. राइटर जब पढ़ने के लिए बैठे, सबसे पहले उनको उनके पढ़ाई में जो खलल हुआ वो अपनी ही फैमिली के मेंबर्स जो सो रहे थे उनकी स्नोरिंग की वजह से हुआ। स्नोरिंग कहते हैं खराटे लेने को, तो घर के ही अफराद खराटे ले रहे थे। सबसे पहले राइटर को घर के लोगों के खराटे लेने की वजह से डिस्टर्ब हुआ। द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, फिर सेकंड टाइम में राइटर को फिर खलल हुआ अपने रीडिंग में, वो थी उनके घर पर वक्तन फ़ौक्तन आने जाने वाली चिड़ियाँ। इंटरमिटेंट कहते हैं वक्तन फ़ौक्तन आने जाने वाले। चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोस, यानी घर पर जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, तो वक्तन फ़ौक्तन वो आती जाती थी और चहचहाती थी, जिसके वजह से राइटर को खलल हो रहा था, खामोशी में शोर हो रहा था। द हार्श काविंग ऑफ अ क्रॉ, द श्रील कॉल ऑफ ए काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, फिर राइटर को कौवों की जो है तो काय से जो है तो डिस्टर्ब हुआ, यानी कि कौवे जो है तो खरखत आवाज़ निकाल रहे थे, जिसकी वजह से राइटर के रीडिंग में खलल हो रहा था, पढ़ने में। और फिर राइटर ने आखिर में बताया कि जो पतंग हवा में उड़ रही थी, तो उस पतंग के सरसराहने से भी राइटर को डिस्टर्ब हो रहा था। मिनट्स टिक्ड बाय, I became deeply absorbed in the book. लेकिन कुछ ही वक्त गुजरने पर मैंने फिर से अपनी तवज्जो को जो है तो मरकूज़ किया, और राइटर कहते हैं कि मैं फिर से जो है तो मुताले में मगन हो गया, यानी मैं बहुत गहराई से उस बुक का मुताला मैंने करना शुरू किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये 3 पैसेजेस समझ में आए होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आइंदा पैसेजेस को समझने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।